Now, percentages is a very nice and a very basic chapter when it comes to mathematics. This is the first chapter of your quantitative aptitude if we do not consider the number system and the Vedic mathematics. So, this is by far the first chapter of any uh, QA book most of the times. All right. Now, let's discuss. I have already shared the PDF file with you. Please confirm if you have received it. Yes, sir. Okay, great. Just a moment. I will also open that. Perfect. So yeah, let's begin. If possible, kindly switch on your videos as well, so that at least I can see you guys and interact a little more instead of just talking in front of a blank screen. No compulsion though, but if it's possible, it would be great. चलो at least let us begin. So percentages में सबसे पहले शुरू करते हैं with some basic formulae. Okay, what are the important formulae when I talk about percentages? तो सबसे पहला तो एकदम सिंपल, x percentage of y. When I say x% of y, this is the formula, x into y upon 100. Usually we also write it this way. I am sure you guys would have written it before as well. X% of y. So this is how it is written. Now be it x% of y or y% of x, the value is going to be equal. Of course आपको समझ में आ रहा है क्यों? Because यहाँ पे it will be x y upon 100 और यहाँ पे आ जाएगा y x upon 100. तो बात तो एक ही है, क्या ही फर्क पड़ रहा है? Okay, so this is the first very basic thing. Another question that is usually a very basic question is percentage change. Okay, ये हम लोग कॉलेज डेज में कर चुके हैं in our degree or in our junior college as well. We have done a lot of numericals with respect to percentage change in chemistry and in physics. Okay, so वहाँ पे हम लोग ने एक और पढ़ा था. Anybody who can recollect percentage change में क्या होएगा? Yes guys, anybody who can recollect percentage change कैसे calculate करते थे हम लोग? So percentage change was usually done this way. चेंज अपॉन इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय 100. कोई बता सकता है मुझे, किसी को अगर कुछ याद हो कि 12th स्टैंडर्ड के कॉलेज में हम लोग ने परसेंटेज चेंज और रिलेटिव चेंज कहाँ पढ़ा था? एनीबडी यू कैन रिकलेक्ट एनी टॉपिक वेर यू हैव स्टडीड रिलेटिव चेंज? एनीवन? It was in chemistry. Chalo, I'll give you a hint also. It was in chemistry. It was in a chapter called Solution Colligative Properties. Can somebody recollect where we have studied relative change? कोई है या सब सो गए? Yes, Bhagyashree, Rashi, Sarbaz, Trisha, Shreya, anybody? Okay, just in case if you don't recollect, the answer is lowering of vapor pressure. If you remember, we are used to do delta P upon P. So तभी से हमको पता है कि relative change जो होता है वो change upon original होता है. जैसे ये multiply by 100 करते हैं वो percentage change हो जाता है. Okay, then basic another formula is if a is increased by x%. Okay, if any particular value is increased by x%, what are the different ways in which you can write it? Of course the final value is going to be the original value plus the increase. So जैसे था x y upon 100, तो x a upon 100. अब दोनों में से a कॉमन निकाल के I can write it this way also, and the better way or the faster way would be 100 plus x upon 100 into a. So if somebody tells me that a particular value has been increased by 5%, what I will do is it's just 105% of that particular value, whatever the value is. ये समझ में आया क्या किया मैंने guys? Yes or no? Yes, sir. Okay, and exactly similar with respect to decrease, तो उस समय हम लोग minus करेंगे. Okay, so if somebody says that a particular value has been decreased by 10%, the new value is going to be 90% of that value.
Guys, इधर तक clear है? Everyone, all 5? Yes, sir. Yes, sir. Please write this down. Don't take a screenshot, guys. Please write properly. Are we done? Yes, sir. Okay, great. I hope everybody is done writing. The next set of formula is this is a very common question. A consecutive increase. Okay. So चलो एक एग्जांपल पूछता हूँ यहाँ पे. अभी ये फॉर्मूला तो अब बाद में अभी तो दे दिया है मैंने, पर फिर भी अगर मैं वो हटा के आपको क्वेश्चन पूछूं कि अगर हम लोग कंसिडर करते हैं कि एक पर्टिकुलर वैल्यू है ए, उसका पहले 30% ग्रोथ हुआ, हम लोग ने उसका वैल्यू 30% बढ़ाया और फिर इसका 20% ग्रोथ हुआ और तब जाके फाइनली सी पे पहुंचा. तो कोई डायरेक्टली बता सकता है कि डायरेक्ट ए टू सी का परसेंटेज ग्रोथ कितना था? यूजुअली पीपल आंसर इट एज 50%, which is wrong. Okay, so how do we go about with such questions? The formula is here कि if there is a consecutive increase, देखो ए को पहले अपन ने x% से इंक्रीज किया, फिर उसको हमने y% से इंक्रीज किया, तब जाके हम b पे पहुंचे हैं. ओके, तो जो परसेंटेज इंक्रीज है फ्रॉम ए टू बी इज गिवन बाय द फॉर्मूला x plus y plus xy upon 100. So now if I put it this way again, a to b and b to c, we increase initially by 30% and then increase by 20%. Can somebody now answer this question? What would be the percentage increase from a to c? Give it a try. 30 plus 20 plus 3 2 जा 6. 6. अरे क्या बात है, 6 upon 100. ओके, ये कैंसिल हो गया. व्हाट विल बी 30 plus 20? 50. 50 plus 6. So your final answer is 56% growth. Okay, this is what it is. A to C is going to be a 56% growth. तो अगर हम लोग कभी भी ऐसे consecutive increase दिखा रहे हैं तो this is the standard formula that we can directly use. Okay, x plus y plus xy upon 100. Please write this down. Are we done? Yes, sir. Others done writing? Yes, sir. चलो बढ़िया.
अभी ये वाला पार्ट है, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट. यहाँ दिस इज द प्लेस वेयर मैक्सिमम क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. तो दो चीजें, ये तो एकदम कॉमन सी चीज है, ये पहले मैं आपको बता दूं, बिल, टैक्स एंड डिस्काउंट. चलो लॉजिक लगाते हैं, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर दिस करेक्टली. ओके, अगर मेरे पास एक पर्टिकुलर बिल है, उसके ऊपर मैं पहले टैक्स ऐड करता हूँ, जितना भी परसेंटेज टैक्स है वो ऐड करता हूँ, और फिर मैं बंदे को डिस्काउंट देता हूँ. ओके, फिर मैं बंदे को डिस्काउंट देता हूँ, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू आई एक्स. या फिर पहले मैं डिस्काउंट माइनस करूँ और फिर टैक्स ऐड करूँ, तो वैल्यू आई वाई. कोई मुझे बता सकता है एक्स और वाई के बीच में रिलेशनशिप क्या रहेगी, कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा? सर y छोटा होगा और x बड़ा होगा. वाई छोटा होगा. बाकी लोग, सरबाज के अलावा, एनीबडी एल्स? व्हाट डू यू थिंक विल बी बेनिफिशियल फॉर अ शॉपकीपर, कि पहले टैक्स ऐड करके फिर डिस्काउंट देना चाहिए, या पहले डिस्काउंट माइनस करके फिर टैक्स ऐड करना चाहिए? एनीवन? यस, भाग्यश्री, राशि, सागर, सर वाई तेजमल. बड़ा होगा एंड एक्स वाई छोटा. बड़ा होगा, ये कौन बोल रहा है? ये भाग्यश्री बोल रही है. ओके, व्हाट अबाउट राशि, सागर, तेजमल, श्रेया, त्रिशा? Y will be small. Y will be small, that is who? Shreya. Okay, anybody else? Trisha, what about you? So X will be greater. X will be greater, that means Y will be small, right? Yeah, yeah. Okay, so yes, very nice. I'm very happy that all of you have answered this, and the correct answer is X will be equal to Y. There will be no change. Okay, sir, how? आपको चाहिए तो मैं वैल्यूज डाल के दे देता हूँ. ओके, आप क्या मर्जी से एक मुझे कोई भी एक सिंगल डिजिट वैल्यू दो. राशि, गिव मी अ सिंगल डिजिट वैल्यू, एनी वैल्यू. राशि इज हियर. 7. 7. ओके, तो अपन 7% टैक्स ऐड करते हैं, या 8% करते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा कैलकुलेट करने को. और त्रिशा, गिव मी अ सिंगल डिजिट वैल्यू अगेन. So 8. 8 मैंने ऐड कर दिया, कुछ और बोलना. 6. 6. तो चलो हम लोग है ना 8% टैक्स रखते हैं और परसेंटेज डिस्काउंट रखते हैं 6. ओके, तो ओरिजिनल वैल्यू 100 है, उसको मैंने 8% मतलब 8 रुपीज़ ऐड किया, तो कितना हो गया? 108 हो गया. एवरीबडी ओके विद दिस? Yes, sir. और अब उसमें से मैं डिस्काउंट माइनस कर रहा हूँ, तो 6% माइनस करेंगे, तो 6% कैसे निकालना है अपने को आता है. इधर मैं लिख देता हूँ, 6% ऑफ 108, हाउ मच वुड दैट बी? तो 648 अपॉन 100 इज 6.48, बराबर है. 6.48 माइनस करो 108 में से, माइनस 6.48, हाउ मच डू यू गेट? 101.52. इधर तक ठीक है? पब्लिक, एवरीवन ओके विद दिस? Yes, sir. sir. तो पहले मैंने टैक्स ऐड किया और फिर डिस्काउंट माइनस किया. अब क्या करता हूँ, अब मैं डिस्काउंट माइनस करता हूँ, तो 94 आ जाएगा. और अब टैक्स ऐड करते हैं, कितना है टैक्स? 8% है, तो 8% ऑफ 94. 8% ऑफ 94, 8 into 94, एनीबडी? 752 अपॉन 100 विच विल बी 7.52. तो अभी मेरे को बताओ, इसको मैं 7.52 ऐड करूंगा किसको? 94 को, तो कितना आंसर आएगा? 101.52 अगेन. समझा क्या हुआ ये? Yes, sir. गाइज, एवरीवन, यस और नो? यस सर. समझा? सो अंडरस्टैंड दैट टैक्स पहले डिडक्ट करके फिर डिस्काउंट दो, या डिस्काउंट पहले डिडक्ट करके टैक्स दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. बाकी आप अगर आप एकदम ब्लाइंडली एज अ लेमैन भी देखते हैं, सिंपल स्कूल लेवल मैथमेटिक्स, तो आप ये दोनों बॉक्सेस पे ध्यान दो ना. क्या है बॉक्स में? b प्लस टी माइनस डी
या B माइनस डी प्लस टी, क्या फर्क पड़ा? समझा क्या? हाँ सर. ओके, सो दिस इज वन थिंग दैट यू शुड रिमेंबर कि डिस्काउंट पहले दे या टैक्स बाद में दे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. द वैल्यू एक्स एंड वाई इज गोइंग टू बी द सेम. ऑलराइट, अब यहाँ पे जो बात आती है, ये जो प्रोडक्ट स्टेबिलिटी करके मैंने लिखा है, मैं पहले एक न्यू स्लाइड ऐड कर देता हूँ. तो ये कहाँ पे जरूरत पड़ेगा प्रोडक्ट स्टेबिलिटी का? नाउ it is usually with respect to two values. Product stability, as in product is multiplication, so you are multiplying, and stability means it has to be a constant. So something like this, p into v is a constant. kahin pe dekha hai ye pv is a constant? Anybody? Which law is this? Anybody? pv is a constant. So ideal gas law Ideal equation. gas law. कौन है ये? Sorry, त्रिशा. gas ideal. Oh, आइडियल गैस इक्वेशन dial. था. Yeah, हाँ हाँ. नहीं, पर पीवी इज अ कांस्टेंट किसका लॉ था? तो वो याद नहीं आ. अरे वाह, प्रेशर फार्मेसी कर गैस रहे का हो. ही था. हाँ, प्रेशर ऑफ कोर्स गैस का इज अ बॉयल्स लॉ. हाँ. Yeah. I was not getting the name. No problem, no problem. That's okay. That's why we are taking MBA over pharmacy. That's okay, relax. So देखो ये बॉयल्स लॉ है. अभी इसमें देखो, अगर आपको कभी याद हो तो ऐसा एक क्वेश्चन आता था कि प्रेशर अगर 10% से इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम कितना डिक्रीज होना चाहिए, बिकॉज वी वांट the pressure into volume to be a constant. This was a very commonly asked question in CET level or NEET level exams as well. यहाँ पे भी ये प्रोडक्ट स्टेबिलिटी बात आती है. ओके, प्रोडक्ट इज मल्टीप्लिकेशन, स्टेबिलिटी मतलब कांस्टेंट. सो इफ योर फाइनल आंसर इज सपोज टू बी कांस्टेंट, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू है विच कम्स आफ्टर मल्टीप्लाइंग टू अदर वैल्यूज, और अगर आपको उसको कांस्टेंट रखना है तो एक का परसेंटेज इंक्रीज होगा तो ऑफकोर्स दूसरे का परसेंटेज डिक्रीज होगा. क्या रेशियो में इंक्रीज होगा या क्या रेशियो में डिक्रीज होगा, दैट इज गिवन डायरेक्टली इन दिस टेबल. सो इफ यू आर एबल टू मेमोराइज दिस टेबल, it's very easy, there is nothing to memorize as such. If you are able to memorize this table, it will be very direct for you. Okay, कि अगर प्रोडक्ट स्टेबिलिटी है, अगर आपको a इंटू बी को कांस्टेंट रखना है और अगर आप a की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो b की वैल्यू कम होगी. by how many percentage? So if you are increasing the value of a by 100%, तो b will decrease by 50%. If you increase a by 50 तो 33.3, 33.3 तो 25, 25 तो 20, 20 तो 16.6. ये टेबल है, ये आप लोग लिख लो या इसका स्क्रीनशॉट निकालना है तो स्क्रीनशॉट निकाल लो. एग्जैक्टली द सेम थिंग देख लो बिफोर यू स्टार्ट डूइंग एनीथिंग. यहाँ पे परसेंटेज चेंज दिखा रहा हूँ और वही परसेंटेज के बदले में रेशियो में जब बात करता हूँ, रेशियो में तो 100%, when I say 100%, do you agree that 100% is 100 upon 100? So the ratio is going to be 1, yes or no? Yes sir. Yes, sir. तो 100% के बदले वहां पे मैंने 1 लिखा है, तो 50% के बदले हाफ लिखा है. तो जो चीज मैं परसेंटेज में यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ वही चीज मैं आपको यहाँ पे रेशियो में दिखा रहा हूँ कि इफ देयर इज एन इंक्रीज इन a by 1 then the decrease in b will be by half. अगर यहाँ पे हाफ है तो 1/3, 1/3 है तो 1/4. सिर्फ एक एक डिनोमिनेटर का वैल्यू एक एक से चेंज हो रहा है. Okay, the denominator of decrease is going to be greater than the denominator of increase. Okay, इतना सा ये बेसिक सा वैल्यू है, इसको कैसे यूज करना है. तो देखो अभी मैं ये वाला क्वेश्चन ही आपको समझा दूं. ज्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं कि पीवी अगर अपन कांस्टेंट रखेंगे, अगर प्रेशर इज इंक्रीजिंग बाय 10% तो वॉल्यूम शुड आल्सो डिक्रीज बाय 10%. दिस इज द मोस्ट कॉमन एरर एवरीबडी मेक्स. ओके, आप चाहो तो आप सॉल्व करके भी देख लेना, आपको पता चल जाएगा. बट इन दिस केस वी यूज दिस वी कंसिडर दिस. तो सर अगर प्रेशर 10% से बड़ा है, 10% मतलब दिस इज दिस 10%. व्हाट इज द रेशियो ऑफ 10%? 1/10, yes or no?
तो वॉल्यूम शुड डिक्रीज बाय 1/11 which is 9.09%. ओके, ये रहा 1/10 है, तो यहाँ अगर 1/10 आएगा तो यहाँ पे 1/11 आएगा. ओके, so that is, ये देखो 10 and 9.09. So if the A percentage is increasing by 10, the B percentage should decrease by 9.09. This is the way you will be calculating. Usually public सोचता है कि constant है तो इतना ही रहेगा, क्या फ़र्क पड़ता है. ओके, ऐसा नहीं होता. So कभी कभी questions कैसे आएंगे, say for example कि आपके पास 100 रुपये है. ओके, आपका बजट 100 रुपये का है. आप पहले कुछ चीज़ें खरीदते थे. ओके, यू यूज टू बाई सम एप्पल्स, से एप्पल्स खरीदते थे. अभी वो लोग ने क्या किया कि जो कॉस्ट है ना वो 25% से इंक्रीज कर दिया. अगर कॉस्ट 25% से इंक्रीज होगा तो आप कितने एप्पल्स खरीद पाओगे? हाउ मच परसेंटेज ड्रॉप विल बी देयर इन द नंबर ऑफ एप्पल्स? बट यू नो दैट कॉस्ट multiplied by number of apples is of course going to be 100. Do you think it's a constant? Do you agree that it's a constant? क्योंकि अपने पास तो 100 रुपये ही है ना यार. समझ में आ रहा है गाइस ये क्वेश्चन? आपका बजट 100 रुपये का है, आप एप्पल खरीदने गए. ओके, अभी लेकिन एप्पल का कॉस्ट वो लोग ने 25% बढ़ा दिया. तो हाउ मेनी परसेंटेज एप्पल्स विल यू बाय लेस? व्हाट विल बी द डिक्रीज इन परसेंटेज ऑफ एप्पल्स दैट यू कैन बाय? तो बट अपने को मालूम है कि अपना बजट तो 100 रुपये का ही है. तो इफ द कॉस्ट इज इंक्रीजिंग बाय 25%, ओके, देखो इंक्रीज कहाँ है? इंक्रीज अगर 25% का है तो डिक्रीज कितना होना चाहिए सामने? 20%. सो देयर विल बी अ डिक्रीज इन 20. आपको फिर सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा इफ यू आर एबल टू मेमोराइज दिस टेबल और इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. So please, if you want, write this down or take a screenshot, whatever is comfortable. But please try to read this as and when you get time. गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा है क्या हुआ है. नहीं समझा है तो प्लीज पूछो. एनीबडी विद एनी प्रॉब्लम इन दिस टेबल? कुछ नहीं समझा? Guys, anyone who has not understood anything, please ask. Sir, understood. लिख के हो गया गाइस? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ग्रेट. अभी एक और छोटा सा पार्ट बचता है. ये सेम परसेंटेज के रिलेशन में ही है. जो आपको पहले से पता हो तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा. दिस इज अबाउट कन्वर्टिंग फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेजेस. ओके, so what you see here is your numerator and what you see here is your denominator. So if your ratio is 1/1, we know it's 100%.
If your ratio is 2/1, it's 200%. 3/1 is 300%. So उसके हिसाब से 1/16 तक का हम लोग ने ये टेबल तैयार किया है. This is something which will be useful for you, so that becomes direct. Okay, तो प्लीज जरा ये टेबल का स्क्रीनशॉट निकाल लो. लिखने मत बैठना, बहुत ज्यादा है. 3-4 बार देख लेना प्यार से, तो आपको पता चल जाएगा क्या रेशियोज है. These are the most commonly asked ratios when it comes to percentage numericals. Guys, okay? Yes, sir. Okay. Chalo, बढ़िया. So now that we are done with this formula part or the basic introduction part, let us go to our numericals. Public, सब लोग ने स्क्रीनशॉट निकाल लिया इसका. ये लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा है ये. खाली खाली टाइम वेस्ट मत करना इसमें आपका. Anybody with any questions so far with the introduction, with any formula? ये देखो, ये basic formula था. What is x percentage of y or y percentage of x? Percentage change is change upon initial multiplied by 100. Okay? अगर किसी का वैल्यू परसेंटेज से बढ़ा रहे हो तो जो फाइनल वैल्यू रहेगा वो ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे. 100 प्लस एक्स अपॉन 100 एंड 100 माइनस एक्स अपॉन 100 अगर वैल्यू डिक्रीज कर रहे हो तो. देन वी ऑल्सो सो कंसेक्यूटिव इंक्रीज, कि एक बार इंक्रीज हो रहा है एक बार डिक्रीज हो रहा है, तो जो नई वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, और या नया जो परसेंटेज है डायरेक्ट परसेंटेज a to b will be how much. So this is the formula given, x plus y plus xy upon 100. Then we saw this कि बिल टैक्स पहले दो या डिस्काउंट पहले दो कोई फर्क नहीं पड़ता है. All right, and then we saw something called as product stability. Product stability, the multiplication that is a product has to be stable. That means it's a constant. So एक कोई ऐसा particular value है which depends upon the product of two values, and if that is constant, say for example your budget, if our budget is constant and if the price increases, then automatically in that proportionality we have to decrease our consumption. Okay, मुझे 500 रुपए का पेट्रोल ही भराना है हर बार, पर पेट्रोल का प्राइस जैसे जैसा बढ़ेगा वैसा वैसा क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल में कम लेगा, क्योंकि मेरा बजट 500 रुपीज का ही है. ओके, सो बेस्ड ऑन दैट आई कैन, based on this table I can calculate कि how much petrol will I be able to buy in 500 rupees, या कितना परसेंटेज कंजम्पशन कम होगा या कितना परसेंटेज खर्चा बढ़ेगा, जो भी है वो इसमें आएगा. ऑलराइट, एंड देन वी सॉ दिस which is for fractions to percentages. तो जो ऊपर horizontal है that is your numerator and the vertical part is your denominator. Okay, so let's go to the questions. I hope everybody has received the PDF once again confirming. Yes, sir. Chalo, let's start. Anybody would like to solve this? What is 50% of 40% of 1200? 240. 240. 240. Very good. It's 50% of 40% of 1200. वेरी इजी. इसके 2 जीरो में इसके साथ कैंसिल करता हूँ, इसके 2 जीरो में इनके साथ कैंसिल करता हूँ. तो आई हैव ओनली 5 into 4 into 12. The answer is 240. Guys, I want you to write it, okay? I don't want you to just tick the question. Please write. Okay, quants है. Quants is very similar to your chemistry. जब तक लिखोगे नहीं और प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं होगा. Okay, देख के नहीं होने वाला.
Okay, चलो next question. Tipu's salary is increased from 7,200 to 8,100. What is the percentage increase in Tipu's salary? So सबसे पहले तो कितना इंक्रीज हुआ, कोई बताएगा कितने रुपए इंक्रीज हुआ है? 900. 900 रुपीज. सो दैट्स योर चेंज. डिनोमिनेटर में क्या लेंगे, 700 लेंगे या 8,100 लेंगे? क्या लेंगे, 7,200 लेंगे या 8,100 लेंगे डिनोमिनेटर में? 7,200. वेरी गुड, 7,200 लेंगे, क्योंकि इनिशियल अभी मैंने लिखवाया था ना फॉर्मूला, चेंज अपॉन ओरिजिनल, चेंज अपॉन इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय 100. ओके, मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे ऑफ कोर्स. तो 2 0 इधर से मैं कैंसिल कर देता हूँ. 9/72 इज 1/8 बिकॉज 9 8 72 होता है एंड 100. तो क्या आंसर आएगा? 12.5%. प्लीज राइट दिस डाउन. हेलो सर. हाँ बेटा बोलो. सर ये 900 कहाँ से लिया, ये दोबारा बताएंगे? अभी देखो ना, आपका सैलरी 7,200 था और फिर 8,100 हुआ ना. टीपू की सैलरी इंक्रीज हुई है 7,200 से 8,100 पे. तो मुझे कितना बढ़ा है? ओ सर 900. 900 रुपए ना. और परसेंटेज इंक्रीज पूछा ना अपने को. ठीक है सर. ठीक है, ओके बेटा, ठीक है, समझा ना पक्का? ओ ओके. अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. 42% of a number is subtracted from 61% of itself. The resulting value is 38. What is the number? So simple सी चीज है. Let the number be x. तो 61% of x उसको अपन माइनस करेंगे किससे? 42% ऑफ द नंबर. बराबर है ना? 42% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 61% ऑफ itself. itself मतलब द सेम नंबर. ओके, तो माइनस 42% ऑफ द सेम नंबर. सब मिला के फाइनल आंसर कितना आया? 38 आया. तो अभी अपने को मालूम है, सिंपल मैथ्स है, डिनोमिनेटर कॉमन है. तो 61x minus 42x upon 100 is equals to 38. What is 61 minus 42? 19. Very good. So 19x upon 100 is equals to 38. Therefore, x is equals to 38 into 100 upon 19. 19 2s are 38. X is equals to how much? 200. Very good, perfect. Guys, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हो? हाँ सर. Tejmal, Shreya, Trisha, Yes, sir. getting it right? Guys, done? Chalo, anybody for question number 4? I have already covered this topic in the introduction. 44. Okay, anybody else? Guys, anyone else? Bhageshri, Trisha, Sagar? इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया 2 बार 20% से इंक्रीज हुआ है. ट्वाइस सक्सेसिवली बाय 20%. मतलब x भी 20 है और y भी 20 है. %44. Yes. Anybody else? 44% is correct. बिकॉज अगर आप ए से बी जाओगे, एक बार 20% ग्रोथ दिया,
फिर से 20% ग्रोथ दिया और तब जाके आप बी पे पहुंचे, तो जो ओवरऑल ग्रोथ है दैट विल बी 20 + 20 + 20 इंटू 20 अपॉन 100 विच विल बी 40 प्लस 400 अपॉन 100. ऑफ कोर्स कैंसिल होएगा, 4 बचेगा विच इज 44%. Guys, okay with this? Everyone? Yes, sir. Okay. Question number 5. The numbers are respectively 30% and 40% of a third number. Third number क्या है अपने को मालूम नहीं है. What percentage is the first number of the second number? Okay, first number of the second number. देखो परसेंटेज न्यूमेरिकल्स करते समय एक चीज ध्यान रखने का कि व्हेन यू डोंट नो पर्टिकुलर वैल्यू वी यूजुअली टेक इट एज x, बराबर है. बट परसेंटेजेस में आप लोग उसको डायरेक्टली 100 भी ले सकते हो. सो लेट द थर्ड नंबर बी 100. लेट द थर्ड नंबर बी 100. तो नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3. ओके, नंबर 3 कितना है? 100 है. नंबर 1 क्या है? 30% ऑफ 100. ऑफ कोर्स 100 का 30% इज गोइंग टू बी 30. यस और नो? Yes, sir. एंड दूसरा नंबर है 40% ऑफ 100, तो वो 40 रहेगा. तो एक नंबर 30 है, एक नंबर 40 है. व्हाट परसेंटेज इज फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकेंड नंबर? सो यहाँ पर क्वेश्चन में परसेंटेजेस निकालते समय एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है वो है आपका डिनोमिनेटर, कि आप कंपेयर किसके साथ कर रहे हो. ओके, तो यहाँ पर जब मैं परसेंटेज की बात करता हूँ, डिनोमिनेटर की बात करता हूँ, तो सेकेंड नंबर इज अवर डिनोमिनेटर बिकॉज अपने को उसके साथ कंपेयर करना है ऑफ द सेकेंड नंबर एंड फर्स्ट नंबर. तो फर्स्ट नंबर इज 30, सेकेंड नंबर इज 40 मल्टीप्लाइड बाय 100. सो इट्स अ 3/4. ऑफ कोर्स 3/4 एवरीबडी नोज हाउ मच विल बी द आंसर. 3/4 है तो 75. 75%. पब्लिक ये समझा क्वेश्चन? नहीं समझा तो प्लीज पूछो. Sir, can you repeat? Sure. देखो, as I have said before कि usually when we don't know a number we take it as x, but percentages में we can take that number as 100. So our third number is 100, ऐसा हम assume करते हैं. Then आपको बोला गया है कि the numbers are 30% and 40% of this number. So the number 1 is 30% of 100 which is 30. The number 2 is 40% of 100 which is 40. इधर तक ठीक है. फिर आपको बोला है कि फर्स्ट नंबर और फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर का कितना परसेंट है. व्हाट परसेंट इज फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकेंड नंबर? तो ऑफ द सेकेंड नंबर इज योर डिनोमिनेटर. व्हाट फर्स्ट नंबर बिकम्स योर न्यूमरेटर. तो व्हाट इज द फर्स्ट नंबर? 30 ऑफ द सेकेंड नंबर. सो व्हाट इज द सेकेंड नंबर? 40. सो ये हो गया एंड बिकॉज इट्स परसेंटेज वी मल्टीप्लाइड बाय 100 की फर्स्ट नंबर जो है 30 जो है ये 40 का कितना टक्का है. हाउ मच परसेंटेज ऑफ 40 इज 30. हाउ मच परसेंटेज ऑफ सेकेंड नंबर इज द फर्स्ट नंबर. तो अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो रहेगा वो 40 रहेगा एंड दैट इज व्हाई वी सॉल्व इट हियर लाइक दिस. ओके विद दिस? Yes, sir. श्योर ना त्रिशा? Yes, sir. Yes, sir. I hope you guys are writing it. Yes, sir. Okay, chalo next question. 10 liters of water is added to 50 liters of a solution containing 20% alcohol in water. What is the concentration of alcohol in the solution now? Anybody? ये तो सिंपल केमिस्ट्री न्यूमेरिकल है यार.
तो पहले अपने पास क्या था, 50 लीटर पानी था जिसमें 20% अल्कोहल था, बराबर है 20% अल्कोहल इन वाटर ओरिजिनली. नाउ वी हैव एडेड 10 लीटर्स. तो सबसे पहले तो ये देखो कि 50 लीटर में पानी, 50 लीटर में टोटल सॉल्यूशन में 20% अल्कोहल था. तो हाउ मच अल्कोहल वाज देयर, हाउ मेनी लीटर्स? सो 10 liters. yes, exactly, that is one very important point. Just a moment. Yeah. So sir, 20% of the solution is alcohol. तो कितना हो गया अल्कोहल? 10% हो गया, या 10 लीटर हो गया, सॉरी. ओके, 10 लीटर अपना अल्कोहल है. पब्लिक ये समझा सब लोग को 10 लीटर अल्कोहल कैसे आया? Yes, sir. एवरीवन? Sir. ओके, अभी अपने पास अल्कोहल 10 लीटर ही है, लेकिन अपन ने और 10 लीटर पानी डाला अभी, तो टोटल सॉल्यूशन कितना लीटर का हो गया? 60. Others also 60 liters. Everybody okay with this? Yes, sir. पर अल्कोहल तो 10 ही है ना अभी भी. तो अभी इस बार टोटल सॉल्यूशन 60 लीटर्स का है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 1/6 आएगा. मैंने आपको बताया था 1/6 का रेशियो क्या रहेगा, 16/6. इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, 16/3.33 नहीं है, 16.66 आएगा. Guys, everybody okay with this? Yes. ओके अभी देखो इसमें मैं आपको वो प्रोडक्ट स्टेबिलिटी वाला मेथड भी दिखाता हूँ. ये चीज को प्रोडक्ट स्टेबिलिटी से भी कर सकते हैं. सर कैसे? मेरे को बताओ, 10 लीटर पानी डाला अपन ने, बराबर है 50 लीटर में. व्हाट इज 10 लीटर्स ऑफ 50 लीटर्स? व्हाट इज 10 ऑफ 50? हाउ मेनी परसेंटेज? 10/50 is how much? 1/5. Yes or no? Yes. ओके, 10/50 is 1/5. तो जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम बढ़ा कितने से बढ़ा? 1/5 से. तो कॉन्सेंट्रेशन जो है, कॉन्सेंट्रेशन वो कितने से कम होना चाहिए? मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट स्टेबिलिटी 1/6 से. 1/6 से कम होना चाहिए कि नहीं? बराबर है. नाउ व्हाट इज 1/6 ऑफ 20%? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन अपना पहले 20 था ना, तो 1/6 ऑफ 20 कितना आएगा? 3.33 आएगा. समझ में आया ये? 3.33 आएगा. और 3.33 अगर कम हुआ है तो फाइनल आंसर वही रहेगा, 20 माइनस 3.33. तो आंसर वही आएगा 16.67. दिस इज द डिक्रीज इतना है, तो फाइनल वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा ना. पब्लिक समझा क्या क्या किया है? Yes, sir. Others, did you guys understand how I use product stability here? Yes, sir. Rashi, Trisha, Sagar, Sarbaz, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का वाला ना? प्लीज राइट दिस डाउन. चलो दोनों मेथड लिखो.
Guys, done? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Chalo, next question. A man spends 40% of his income, sorry, 60% of his income, my mistake. For a man spends 60% of his income. His income increases by 40%. ड्यू टू दिस उसके खर्चे भी बढ़ जाते हैं, वो खर्चे भी बढ़ा, ऑफ कोर्स सैलरी बढ़ रही है, खर्चे भी बढ़ाएंगे, तो कितना परसेंटेज इंक्रीज सेविंग्स में होगा? एनीबडी? 40% से उसकी इनकम बढ़ी है, तो बंदे ने अपना खर्चा भी 40% से बढ़ा दिया है, तो सेविंग्स कितना होगा, कोई बता सकता है? 40%. ओके, एनीबडी एल्स? ये 40 किसने बोला? 40 सरबाज, ओके, हाँ. एनीबडी एल्स? 40. 40%, यस, क्योंकि दोनों प्रोपोर्शनलिटी में ही बढ़ रहे हैं. ओके, 60% ऑफ हिज इनकम वो खर्च कर रहा है, बराबर है, 40% बचा रहा था. फिर अगर इनकम 40% बढ़ी, खर्चा भी 40% बढ़ा, तो ऑफकोर्स सेविंग्स भी 40% बढ़ेगा, बिकॉज जितना प्रोपोर्शनलिटी में इनकम बढ़ रही है उतना प्रोपोर्शनलिटी में एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो ऑफकोर्स वही प्रोपोर्शनलिटी में सेविंग्स भी बढ़ेंगे. ओके, सो आंसर इज नन ऑफ द अबव. बाकी जिन लोगों को डायरेक्ट आंसर नहीं समझा, अपन लिख के करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखो, अगर वो 100 रुपये कमा रहा था, ओके, अगर वो 100 रुपये कमा रहा था, तो मेरे को कोई बता सकता है कि वो कितने बचा रहा था 100 रुपये में से? सेविंग्स एंड एक्सपेंसेस, ये इनकम है, तो सेविंग्स कितना हो रहा था उसका? 40 रुपये का, और एक्सपेंस कितना हो रहा था? 60 रुपीज़ का. यस और नो? Yes, sir. Yes. अभी उसकी सैलरी बढ़ गई. ओके, ये I1 है, ये I2 है. उसकी सैलरी बढ़, कितनी बढ़ी उसकी सैलरी? 40% बढ़ी. अब 100 का Yeah, 40, 40%. हाँ, 100 का 40% कितना होता है? 40 रुपये होता है कि नहीं? Yes, yes. तो अभी उसकी सैलरी 140 रुपीज़ हो गई. उसका जो खर्चा है वो भी 40% बढ़ा, लेकिन जो खर्चा है वो किधर है? कौन सा खर्चा है? ये खर्चा है 40 है, 100 है या 60 है? व्हाट इज द एक्सपेंस? 40, 100 और 60? व्हाट इज द करंट एक्सपेंस बिफोर द इंक्रीज? 60 रुपीज, राइट? Yes. Yes, sir. तो 60 रुपीज का 40% बढ़ाना है अपने को. तो 60 का 40 कितना आएगा? 60 का 40% देख लो आप, 24 रुपीज होएगा. सो सर, और 24 रुपये उसने ज्यादा खर्च कर दिया, तो अभी कितना खर्चा कर रहा है वो? 84 रुपीज खर्च कर रहा है. तो कोई मुझे बता सकता है कि वो कितना सेविंग्स कर रहा है? 140 में से 84 खर्च हो गए, तो बचेंगे कितने? 56. 56 रुपीज बचेंगे. एवरीबडी ओके विद दिस? Yes, sir. तो 56 बचे. अब मुझे बताओ, पहले 40 बचा रहा था, 56 बचा रहा है, कितने रुपए ज्यादा बचा रहा है वो? 16 रुपए 60. ज्यादा बचा रहा है. हाँ, तो 16 रुपीज इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ 40? 40%. ओरिजिनल तो अपन 40 लेंगे ना, ओरिजिनल वैल्यू तो 40 है. तो 16/40, 4 के टेबल में 4/10, विच इज नथिंग बट 40%. सो आंसर इज नन ऑफ दिस. पब्लिक समझाइए, Yes, sir. प्लीज लिखो. चलो, okay with this?
चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In a maternity care center, 5% of all childbirth cases are twins. What is the approximate percentage of twins in total children born? ओके तो अपन क्या करेंगे, अज्यूम करते कि 100 केसेस हुए, 100 केसेस, बराबर है. 100 केसेस में से कितने ट्विंस है? 5%. 5%, मतलब पांच पांच हुए कि नहीं? तो 95 सिंगल बच्चे होंगे ना, आया ना? Yes, sir. तो मेरे को बताओ टोटल बच्चे कितने हो गए? टोटल बच्चे 105 हुए कि नहीं? यस सर. Yes, sir. सबको समझा ये पक्का? Yes, sir. ओके अभी अपने को परसेंटेज ऑफ ट्विंस ढूंढना है. तो अपने पास कितने ट्विंस है? अपने पास 10 ट्विंस है. 10 ट्विंस में से टोटल बच्चे कितने? 105 है. अभी इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करो. टेल मी व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज एन आंसर. अप्रोक्सीमेट पूछा है वैसे भी. 9.5. वेरी गुड, 9.5%. पब्लिक समझ में आया क्या किया अपन ने? Guys, did you understand what we have done so far? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Everybody okay with this question? Yes sir. Yes sir. Please write this down. Oh, sorry. Okay, let's go to question number 9. In a solution of sugar and water, the ratio of sugar and water by weight is 1:4. तो अपन ऐसा समझ लेते हैं कि 1 किलो शक्कर है और 4 किलो पानी है, बराबर है. तो टोटल वजन कितना हो गया? 5 किलो हो गया कि नहीं? ओके द सॉल्यूशन इज नाउ हीटेड एंड इन द प्रोसेस इट लूजेस 50% वेट. तो जो नया वजन है वो कितना हो जाएगा? कोई बता सकता है? 50% ड्रॉप हो गया तो एनीबडी? 5 किलो था, अभी 50% कम हो गया, तो नया 2.5. वजन कितना होना चाहिए? 2.5. 2.5 केजी. यस, 2.5 केजी होना चाहिए, बराबर है. तो अभी आपको ये पूछा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ शुगर एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर, मतलब यहाँ पे. तो ये देखो अभी अंडर आइडियल केमिस्ट्री नॉर्म्स, जब अगर सॉल्यूशन की बात करते हैं तो पूरा अकॉर्डिंगली हीट होना चाहिए. बट एज वी ऑल नो कि हीट होगा तो सबसे पहले कौन इवापोरेट होगा? शुगर या वाटर? वाटर इवापोरेट होगा ना. तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो 2.5 किलो जो गया है ना, वो पानी का ही गया है. सो शुगर इज स्टिल 1 kg एंड वाटर इज हाउ मच नाउ? वाटर इज 1.5 kg. ये समझा क्या Yes sir. गाइस? एवरीबॉडी गॉट दिस लॉजिक? Yes, sir. बस. तो अभी 1 और 1.5 का रेशियो क्या है? 2:3. पब्लिक समझा? बाकी लोगों को? Yes sir. प्लीज राइट दिस डाउन.
Okay, chalo, next. In a recent, there are total 6 lakh students who have given this exam. Okay, 40% of them are females. तो सबसे पहले ना फटाफट परसेंटेज कन्वर्जन कर लेने का. 6 lakhs है. ओके, या 600 पकड़ के भी चलोगे तो भी चलेगा. 0% न्यूमेरिकल है तो जितना आपका जीरो का कोई प्रॉब्लम ऐसा है नहीं. तो इसका 40% फीमेल्स है. व्हाट इज 40% ऑफ 6? 4 6 24. तो 2,40,000 आर फीमेल्स. तो ऑफकोर्स 3,60,000 आर मेल्स. गाइज ओके विद दिस? इधर तक समझ में आया? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं सबको? ओके. फिर आपको बोला है दैट पास परसेंटेज अमॉन्ग मेल्स इज 75%. Okay, pass percentage amongst males is 75% and overall pass percentage is 70%. What is the pass percentage among females? तो पहले तो ओवरऑल पास देख लेते. ओवरऑल 70% पासिंग है. तो व्हाट इज 6 7 42. 42. मतलब 4,20,000 बच्चे पास हुए. इधर तक ठीक है? पब्लिक सब लोग ओके विद दिस? हाँ, ये टोटल बच्चे जो पास हुए. इसमें से अपन मेल्स को माइनस करेंगे. तो जो फाइनल आंसर आएगा वो किसका आएगा? फीमेल्स का आएगा. अभी आपको दिया है कि 75% मेल्स पास हो रहे हैं. तो इसका 75%. कोई बता सकता है 75% ऑफ 360? 290. 270. बाकी लोग करो, कैलकुलेट करो, चलो जल्दी. 36 का 75 करो ना. सो इट विल बी अ 3/4. 3/4 किया तो 9 आएगा. 9 9 3 27. बराबर है. तो 2,70,000. तो सर अगर 2,70,000 लड़के पास हुए हैं तो लड़कियां कितनी पास हुई है? कोई बताएगा? 150. सरबाज फुल कैल्ची लेके बैठा है एकदम. नहीं सर. ओके. So girls are 1,50,000. Everybody okay with this number so far? Please confirm. Yes, sir. Everyone, Shreya, Trisha, यस सर. अभी तक सब सही जा रहा है? सागर ओके गुड. अभी 1,50,000 लड़कियां पास हुई है. तो देर आर 150 गर्ल्स आउट ऑफ 240. तो परसेंटेज कितना होगा? तो करो इसका परसेंटेज. 3 के टेबल में 5 3 के टेबल में 8 ये 4 के टेबल में 2 4 के टेबल में 25 विल बी 125 डिवाइडेड बाय 2 इज 62.5. गाइस प्लीज देखो क्या किया है. नहीं समझा है तो प्लीज फिर से पूछो. Everyone okay with this, Mesdam? पब्लिक हो या सो गए सब? यस सर. ओके चलो एक 15 मिनट और करते हैं. आज खत्म कर लेते हैं so that we don't keep anything pending. If you guys are okay, let's stretch 15 minutes more. Okay. Age income is reduced from 75% to 60,000. 75,000 to 60,000. कितना कम हुआ उसका? 15,000 कम हुआ. और बी की जो इनकम है इन द सेम पीरियड इंक्रीज फ्रॉम 60,000 टू 75,000. इसका बढ़ा कितना? 15,000 बढ़ा. What percentage of decrease in age in decrease in A is increase in B? Anybody? Easy.
डिक्रीज इन ए कितना है? 15,000 है। इंक्रीज इन बी कितना है? वो भी 15,000 है। तो परसेंटेज कितना हुआ? 100. Exactly 100%, because it will be 15,000 upon 15,000 into 100, which is 100%. Guys, okay with this? Question number 11. Okay. Salary of Anil and Vineet is 20 and 30% less than salary of Dheeraj. So as I told you, धीरज का सैलरी कितना है अपने को मालूम नहीं है, तो कितना लेना चाहिए धीरज का सैलरी? एनीबडी? धीरज का सैलरी कितना लेंगे? 100 ले लेंगे। तो अगर धीरज sir, का 100. सैलरी, हाँ, धीरज का सैलरी 100 रुपए है, सैलरी ऑफ अनिल इज 20% लेस, तो 100 का 20% कितना कम हो जाएगा? 80, और विनीत का कितना हो जाएगा? 70. एवरीबडी ओके विद दिस? Okay. Yeah, sorry, this one. By what percentage is the salary of Anil more than salary of Vineet? देखो पहले ध्यान के पीछे कौन है? ध्यान के पीछे सैलरी ऑफ विनीत है, तो विनीत अपना डिनोमिनेटर होएगा। विनीत का पगार कितना है? 70। ओके। अनिल का कितना है? 80। कितना ज्यादा है? अनिल और विनीत के सैलरी में कितना फर्क है? 10%. 10% नहीं, 10 रुपीज का। बराबर है। अनिल और विनीत के सैलरी में 10 रुपए का फर्क है। विनीत का सैलरी कितना है? 70 रुपए है। तो अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो। गिव मी द आंसर। चलो 100/7। 14.28. 14.28. ये समझा क्या सब लोग को? परसेंटेज में डिनोमिनेटर अपना जो है ना, वो सबसे मेन है पब्लिक। ओके, डिनोमिनेटर के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि ध्यान के पीछे कौन है, किसके कंपैरिजन में। जिसका कंपैरिजन है वो डिनोमिनेटर में आएगा। तो क्लियरली लिखा है, बाय व्हाट परसेंटेज इज द सैलरी ऑफ अनिल मोर दैन सैलरी ऑफ विनीत। ओके, सो द आंसर इज गोइंग टू बी 10, because salary of Anil is 80, salary of Vineet is 70, so this is the difference, which is 10 rupees, and comparison में आएगा salary of Vineet denominator में। I hope you guys are okay with this. Public समझा ये? Yes, sir. प्लीज लिख लो, चलो जल्दी। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ रिसेंट सेंसस रिपोर्ट ऑफ पटना, it was found that 40% of the total male population, male adult population, okay, and 55% of the total female adult population is married. What percentage of total adult population of Patna is married? Okay, what percentage of total adult population of Patna is married? तो क्या करेंगे, कोई बताएगा? So for males, it will be 100 out of 40. That will be 40, and for females, it will be 55. No, So the total. that cannot be the case ना। अभी तू सोच जरा, इधर क्लियरली लिखा है पॉलीगैमी इज नॉट अ प्रैक्टिस इन पटना। मतलब क्या? जितने मेल शादीशुदा है उतनी ही फीमेल शादीशुदा होनी चाहिए। Yes. समझ में आया क्वेश्चन? हाँ सर। तो तू बोलेगा कि 55 फीमेल्स मैरिड है और 40 मेल्स मैरिड है, तो बाकी की 15 किसके साथ मैरिड है? सो व्हाट यू हैव टू डू इज, इसमें से एक को ही 100 लेना है। तो अपन एक काम करते हैं, मेल पॉपुलेशन को 100 ले लेते हैं। एवरीबॉडी ओके विद दिस? पहले तो मेरे को बताओ, क्वेश्चन समझा क्या पब्लिक सब लोग को? The question.
ओके तो आपको क्वेश्चन क्या है कि पटना में मेल पॉपुलेशन में से 40% मैरिड है और फीमेल पॉपुलेशन में से 55% मैरिड है. ओके टोटल अडल्ट पॉपुलेशन में से कितना परसेंटेज लोग मैरिड है ये आपको पूछा है. ऑलराइट और ये बोल दिया है कि पॉलीगैमी इज नो मतलब एक बंदा एक से ही शादी करेगा. ओके मल्टीपल बंदों से शादी नहीं करेगा. सो अपन क्या करेंगे किसी एक को अपन 100 ले लेंगे. तो हम लोग ने किसको 100 लिया है? हम लोग ने अडल्ट मेल पॉपुलेशन को 100 ले लिया है. सो इफ द अडल्ट मेल पॉपुलेशन इज 100, of course the total married males will be how much? 40, yes or no? Everybody okay with this? Yes, sir. Yes, sir. Okay, let the female population be x. Let the female population be x. But we all know that 55% of the female population is married, yes or no? Yes, sir. Yes. And that is married to how many males? That is married to 40 males. ये इक्वेशन समझा कैसे आया? हाँ सर. बाकी लोगों को समझा ये इक्वेशन कैसे आया? एवरीबॉडी, भाग्यश्री, त्रिशा, श्रेया, Yes, sir. Yes, sir. Yes, श्योर sir. ना? हाँ तो अभी इधर से हम लोग फीमेल पॉपुलेशन ढूंढेंगे. फीमेल इज इक्वल, अगर मेल्स का पॉपुलेशन 100 है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग फीमेल का पॉपुलेशन कितना है? तो x इज इक्वल्स टू 40 इंटू 100 अपॉन 55. ओके तो अभी रफली हम लोग 5 के टेबल में पहले चले जाएंगे. 5 के टेबल में 11 दे देंगे और इधर 8 दे देंगे. 800 अपॉन 11. एनीबडी फॉर 800 अपॉन 11? 72.7, which approximately can be taken as 73 females. So in Patna there are 73 females and 100 males. So what is the total adult population of Patna? Public, what is the total adult population of Patna? Guys, where are you? There are 100 males, 73 females. So what is the total population? 173. 173. आपको भी लास्ट में वही पूछा ना, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल अडल्ट पॉपुलेशन. सो 173 इज माय टोटल अडल्ट पॉपुलेशन. परसेंटेज है इसलिए 100 आ गया. कितने लोगों की शादी हो चुकी है बताओ जरा? 113. अरे रे सरबाज, 40 मर्द की शादी हुई है तो फीमेल्स की 95. अरे वाह ये कौन? नहीं 95, 40 लोगों की शादी हुई है. अच्छा हाँ परसेंट है हाँ. हाँ तो 40 मेल्स की शादी हुई है तो कितने फीमेल्स की शादी हुई होनी चाहिए? 40, 40. तो 40 और 40 कितना होता है? 80, 80. एग्जैक्टली इसको सॉल्व करो, ये आपका आंसर आएगा. किसी को क्वेश्चन नहीं समझा तो प्लीज पूछो. पहले अपन ने क्या किया, मेल पॉपुलेशन को 100 लिया तो उतना तो पता चल गया कि नंबर ऑफ मेल्स दैट आर मैरिड इज 40. इधर तक तो कोई प्रॉब्लम आया नहीं अपने को, बराबर है. पर अपने को मालूम है कि जितने मेल्स की शादी हुई है उतने ही फीमेल्स की शादी होनी चाहिए. और फीमेल पॉपुलेशन अपने को मालूम नहीं था तो हम लोग ने फीमेल पॉपुलेशन x लिया. एंड वी नो दैट 55% ऑफ द टोटल फीमेल पॉपुलेशन इज मैरिड. So 55% of X is of course married to these 40 people only, na? And therefore we found out that there are total 73 females in the city of Patna. तो 100 मेल्स है, 173 फीमेल्स है तो टोटल पॉपुलेशन 173 हुआ. लेकिन अगर 40 मेल्स की शादी हुई है तो ऑफ कोर्स 40 फीमेल्स की शादी हुई है. तो 40 और 40 80. तो 80 by 173 into 100. Solve this. Guys, question समझा? Solution समझा? Yes, sir. Everybody? Yes, sir. yes sir, Okay with this, right? किसी को कोई शादी से प्रॉब्लम किसी की? No, sir. Okay, very good. Thank you, Tejman.
प्लीज लिख लो, चलो जल्दी। ओके चलो 2 और क्वेश्चन करते हैं, 15 पे स्टॉप करते हैं, फिर बाद में 5 क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना नेक्स्ट लेक्चर के लिए। वैसे मैंने पिछले लेक्चर में डेटा इंटरप्रिटेशन का एक ग्राफ होमवर्क में दिया था, किसी ने किया है क्या? अभी कोई रिप्लाई नहीं करेगा, ठीक है जाने दो, पहले 14 और 15 देख लेते हैं। A rainy day occurs once in 10 days. Okay, a rainy day occurs once in every 10 days. Half of the rainy days produce rainbows. Very simple question. What is the percentage of all rainy days, all days that have no rainbows? Anybody? Very easy. 95. Very good. Okay, so अगर assume करते हैं कि 100 total 100 days है, 100 days में से we have been told that how many rainy days are there? 10 rainy days. And 10 में से only 5 rainy days have rainbows. So how many days do not have rainbows? In short, 95 days do not have rainbows. Guys, did you understand? Yes, sir. Easy? Yes, sir. चलो यहाँ पे भी वो प्रोडक्ट स्टेबिलिटी वाला पार्ट आ सकता है, वो लेट्स ट्राई टू यूज दैट कॉन्सेप्ट हियर। So see, if the price of the sugar is increased by 20%, what is 20% in terms of ratio? 20 by 100. 1 by 5, right? Everybody okay with 1 by 5? Yes. Others? Yes, Yes. sir. तो Yes. सर अगर इंक्रीज 1 by 5 का है तो डिक्रीज कितना होना चाहिए? 1/6 का। वेरी गुड। सो क्वांटिटी ऑफ शुगर में डिक्रीज होगा 1 by 6 का। यस और नो? Yes, तो sir. अभी आपको सिंपल क्वेश्चन पूछा, इफ द प्राइस ऑफ द शुगर इज इंक्रीज बाय 20%, देन वन कैन बाय 2 kg लेस in ₹50. So what is the quantity of sugar that could be bought? Sorry. What is the quantity of sugar that could be bought before the price hike? मतलब इन शॉर्ट ये बताना चाहता है कि जब भाव बढ़ा उसके पहले वो बंदा कितना शुगर खरीद रहा था। अब 20% बढ़ने के बाद 2 किलो कम खरीद रहा है, तो उसके पहले कितना खरीद रहा था। ओके, तो सी हाउ विल वी सॉल्व दिस? वेरी इजी क्वेश्चन। As we already know, 1 by 5 is the increase, so 1 by 6 has to be the decrease. Everybody okay with this? Yes, sir. Yes, sir. But 1 by 6 किसका? 1 by 6 ओरिजिनल का ना, एक्चुअल वैल्यू का ना। 1 by 6 of the actual value has been decreased, and what is 1 by 6 of the actual value? 2 kg. Therefore, anybody for actual value? समझा ये? Yes.
जो डिक्रीज हुआ है वो किसका हुआ है, ओरिजिनल वैल्यू था उसका डिक्रीज हुआ है। तो 1/6 भी अगर हम लोग परसेंटेज में कंसिडर करें तो दैट वुड बी ऑफ द एक्स ना, द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ शुगर। इधर कॉस्ट है, इधर क्वांटिटी है, लेट द ओरिजिनल क्वांटिटी बी एक्स। तो अगर एक्स का 1/6 डिक्रीज हो रहा है एंड वो आपको दे दिया है कि भाई 2 किलो से कम हुआ है, तो 2 किलो इधर आ गया, तो एक्स का वैल्यू 12 आ जाएगा। पीपल, एवरीवन ओके विद दिस? Guys, okay with this? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Sure. चलो 5 क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करेंगे फिर खुद से 5 क्वेश्चंस। Alright, so in that case what we'll do is we'll stop here for today. 5 न्यूमेरिकल्स आपके होमवर्क में है एंड आपको मैंने पिछले लेक्चर में जो एक डेटा इंटरप्रिटेशन का ग्राफ सॉल्व करने दिया था, प्लीज वो भी जरा सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको नहीं समझा है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। यू आर ऑलरेडी गेटिंग माई मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप, so if you don't understand please directly drop a message on WhatsApp. Guys, okay? Yes or no? Yes, sir. चलो तो फिर आज के लिए स्टॉप करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो आज क्या किया है हम लोग ने। Yes, sir. Yes, sir. Okay, we'll try it. What we'll do is the chapter is not yet over. ये बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस थे। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसी के थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी देखेंगे एक बार। ओके, ये एकदम बेसिक क्वेश्चंस थे। वी विल ट्राई टू गो फॉर एडवांस लेवल क्वेश्चंस आल्सो। थोड़े वर्ड प्रॉब्लम्स डालते हैं। ओके, एक और लेक्चर लेंगे 1 आवर का ये चैप्टर के, और थोड़े एमसीक्यू सॉल्व करेंगे हम लोग। ओके, देन we'll call it a chapter. All right, so yes, that is there and very sorry for the last lecture का cancellation. आगे से कोशिश करेंगे वापस प्रॉब्लम स्ट्रेट या कंसिस्टेंट रहे। ऑलराइट, चलो, थैंक यू सो मच गाइस। इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस यू कैन डायरेक्टली प्लीज आस्क मी एंड एनी फीडबैक आल्सो मोर देन वेलकम। ओके, Okay, thank you, sir. या थैंक यू गाइस, चलो बाय।